Hi, good morning. I am Mohammad Wasim and it is also the हिंदू न्यूज़पेपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा ये ब्लॉग दिख रहा है, ये पूरा टाइटल दिख रही है द हिंदू न्यूज़पेपर। And in this video it is my purpose that two purpose, that one purpose is also that you have to understand, you have to understood that you have to get the knowledge about the information at the today time, about the today time, what is happening in the world, what is happening in our country, and as well as in our state, and other type of the party. But the second hand, what the very purpose, very main purpose, very head purpose, that I have to we have to know, we have to collect the recover, we have to recover the word meaning, because by the word meaning I have to face the many type of examination where the word meaning may be asked, will be asked, have to asked in the examination. So by this purpose, and both we have to cover, and we have to cover by this way. And according to me, this is the helpful for you. And so let's come how I explain the Hindu newspaper. So, let's we will also try to cover the story, only one event, we will also try to cover the story. And after that, where will the use of the preposition, conjunction, interjection, like this matters, where will we will see. Then I will also try to explain where whatever the possible. And but main point is that we have to cover the word meaning. Word meaning is also the very necessary in the SSC examination, and NDA examination, CDS examination. And lastly I want to say that newspaper is the a very good things. Newspaper is also the very important, very crucial things by which we can cover the word meaning, by which we can cover the all type of grammatical things. But it is not 100% right that you can cover the spotting error. But here is also the some a lot of things of the grammatical portion what can be covered by the newspaper. So let's come, I want to explain. And here is also just you are looking, we have also looked that many type of segmentation. It was also one type of segment, here was also one type of segment, it was also the segment, page number like this matter. But on this type of matter हम लोगों ने यहाँ पे, मैं इसको भी देखा हूँ, इसको भी देखा हूँ, इसका यहाँ पे कोई खास मीनिंग नहीं मिली है, बट इट इज़ आल्सो दैट मीनिंग, यहाँ वर्ड मीनिंग कुछ मिल पाई। इसराइल फिलिस्तीन एंड मिलिटेंट स्टेट्स फायर द मेजर गाजा एस्केलेशन। इसराइल फिलिस्तीन ने क्या किया है, एक फायरिंग किया है, और एस्केलेशन मतलब बहुत ही भारी तरीके से। एस्केलेशन मीन्स क्या होता है, बहुत ही भारी तरीके से बमबारी किया है, तरीके से कह सकते हैं। तो हिट इज़ आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल वर्ड मीनिंग। एस्केलेशन बार बार पूछा भी जाता है, इवन जस्ट यू कैन यूज दिस वर्ड मीनिंग द स्पोकन, इसको हम स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं कि दैट व्हाट द मीन्स ऑफ द एस्केलेशन एंड व्हाट द मीन्स ऑफ द what the means of the escalation. So just you can say that in the sentences that try to escalate it, try to escalate your portion, and it is also the escalation event, escalate event, so like this matter just you can use. And after this we will also try to go and start stories is after this. Here is also the event, जगदीप धनकर इज़ न्यू वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल सबको पता, अभी जल्द ही वोट हुआ है, जगदीप धनकर हमारे नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो उसकी बस छोटी सी कहानी पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पर वर्ड मीनिंग मिलेगा उस मीनिंग को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उस मीनिंग को हम थोड़ा सा कवर करेंगे। और एक बात और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ये जो वर्ड मीनिंग मिलती है ये कहीं पन्ने पे लिख करके और किसी उसको दीवार पे पेस्ट कर देना, किसी डायरी में लिख देना, ये पर्याप्त नहीं हो जाता है। दिस इज़ नॉट द एनफ, इट इज़ नॉट द सफिशेंट, but it is matter that what type of word meaning you are also the looking, the such type of meaning you have to use in our spoken point, you have to use in the your dictionary, you have to use wherever the possible, just you have to search the word such type of the word meaning, and you have to relate the word meaning with your question। इस वर्ड मीनिंग को अपने क्वेश्चंस बिल्कुल रिलेट करना है, तभी ये रिमाइंड में रह पाएगा। एंड इन द अर्ली हेल्दी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मोहम्मद वसीम एजुकेशन चैनल, वसीम एजुकेशन सेंटर। व्हाट द वेरी अभी तो बहुत पॉपुलराइज्ड नहीं है, बट जस्ट आई एम आल्सो द डूइंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ माई एफर्ट।
and here is also just look it now. Jagdeep Dhankar, Naiwas presidents and opponent leaders dented their credibility by the backing him Alva. अलवा जो है, अलवा मार्ग्रेटर थे जो अपोनेंट पार्टी के सदस्य थे कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दिया है, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को डेनेटेड कर दिया है, गिरा दिया है, क्योंकि वो जीत नहीं पाए, उनको कुछ वोट कम मिले। और ये मुख्य रूप से कथन है, अभी बीच में आपको मिलेगा, जो है जगदीप धनकर जी का है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट्स एनडीए पार्टी आपकी, इट इज़ आल्सो द फुल फॉर्म। वेस्ट बंगाल गवर्नर दीप धनकर विल बी द 14वें आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं, याद रखेंगे 14वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हमारे देश के। उनको 500 वोट मिले। ही सिक्योर्ड नॉर्मल वर्ड मीनिंग है, सभी लोग जानते हैं। ही सिक्योर्ड द वर्ड मीनिंग एंड he secured the 528 वोट्स उनको मिले हैं, सभी लोग बिल्कुल जानते हैं। वोट्स इन द 16th वाइस प्रेसिडेंट, ये 16वां चुनाव हुआ है, बिल्कुल आप जानते रहिएगा। 16वां चुनाव वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, लेकिन ये 14वें वाइस प्रेसिडेंट हैं। डेनेटियल इलेक्शंस हेल्ड इन द पार्लियामेंट में हुआ। द अपोजिशन कैंडिडेट कांग्रेस लीडर मार्गवाल वेटर को इतने वोट मिले, बिल्कुल आप देखते रहिए। मिसेज अलवा सेड बाय द सपोर्टिंग मिस्टर धनकर डायरेक्टली और द इनडायरेक्टली, मिस्टर धनकर ने क्या क्या निशाना साधा, किसके ऊपर, अलवा मार्गेटर के ऊपर, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सम अपोजिशन पार्टी एंड दियर लीडर्स हैड डैमेज देयर ओन क्रेडिबिलिटी। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हमारे अपोजिशंस के लीडर पार्टी के लीडर हैं, नेता हैं, जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया है, अपने जो है साख को क्या किया है, हानि पहुंचाया, अपनी साख को खतरे में डाला है। ये उनका अपना खुद का कथन है, और ये चलता रहता है। बट यहाँ पे आप छोटी बहुत वर्ड मीनिंग मिल पा रही, सिक्योर्ड मिल पा रही, डैमेज ये सभी लोग आप जानते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा उत्पल कुमार, and after this here is also the point, secretary general of the लोक सभा, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा की, नेम इज आल्सो द उत्पल कुमार, हु वाज द रिटर्निंग ऑफिसर, जो इलेक्शन कमीशन में जो भी अधिकारी होते हैं, जो चुनाव आयुक्त के लिए उनको चुनाव के कार्य के दौरान रख दिया जाता है, दैट द सच टाइप ऑफ ऑफिसर इज आल्सो नोन एज द रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जानते हैं। इलेक्शन टोल्ड द रिपोर्टर्स दैट, वो अपना पूरा ब्यौरा बताते हैं कि 780 इलेक्टर्स कंप्राइजिंग ऑफ, हाँ ये बहुत अच्छी ही वर्ड मीनिंग है, कंप्राइजिंग ऑफ। और आप जानते रहिए बिल्कुल, कंप्राइजिंग ऑफ एक ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जो हमेशा अपने साथ ऑफ ही लेती है। कभी कभी कंप्राइजिंग करके फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो हम वहाँ पे हमेशा ऑफ का ही यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू दैट वेरी द पॉसिबल वेरी गेट द कंप्राइजिंग, देन जस्ट यू कैन यूज़ द ओनली ऑफ विद द कंप्राइजिंग के साथ शामिल करते हुए। इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, शामिल करते हुए, मिलाते हुए, दाखिल करते हुए भी होता है। और इसकी सबसे एक बेहतरीन वर्ड मीनिंग होती है, दोनों चीज़ें हम कर सकते, एक हमारा RAC रैक ऑन होता है, और यहीं पर दूसरा लिख सकते हैं रैक इन होता है। रैक ऑन भी होता है और क्या होता है, रैक इन भी होता है। रैक ऑन माने भी होता है शामिल करना, रैक इन मीन्स भी होता है क्या, शामिल करना। तो दो वर्ड मीनिंग मिल जाती है हमारी, रैक ऑन, रैक इन, कंप्राइजिंग ऑफ, 3 वर्ड मीनिंग बनती है। एंड द नॉमिनेटेड द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इतने उनको वोट मिले हैं। आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें आप काउंटिंग करते जाइए। हमारा बस एक उद्देश्य है कि हम वर्ड मीनिंग को कितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। एंड आफ्टर दैट द वोटिंग बिगिन एट द, ये वोटिंग है आपकी स्टार्ट होती है अराउंड 75 इनवैलिड हो जाते हैं। एंड इसके बाद आफ्टर दैट टोटल वाद अपोजिशन एक्सपेक्टेड क्लोजिंग, तो इतना बंद हो जाता है। सपोर्ट अनाउंस्ड टू वेरियस द अपोजिशंस एंड पर पार्टीज़ एंड हैव टू ओवर द 60 तृणमूल कांग्रेस की पार्टी है, उनको कितना मिलता है, अपोजिशन पार्टी अनाउंसेस दैट दे विल बाइकॉट एज द वर नॉट कंसल्टेड बिफोर द अनाउंसिंग दम, है ना। एंड अलबाज कैंडिडेचर, ये एक और आ जाता है, अलबाज कैंडिडेचर कहते हैं, अलबाज की कैंडिडेचर की सदस्यता का, प्रतिनिधित्वता का जो वहाँ पे कुछ ब्यौरा नहीं दिया गया था, जिसके कारण उनको कुछ नुकसान हुआ है। तो आप बस कैंडिडेचर, जैसे यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैंडिडेचर, इट्स मीन्स दैट प्रतिनिधित्व या सदस्यता आप कह सकते हैं। लीड एज, अगर जस्ट यू कैन यूज़ द वर्ड मीनिंग ऑफ द कैंडिडेचर इन द डेली रूटीन लाइफ, दैट इट इज़ माई कैंडिडेचर, है ना, दिस इज़ माई कैंडिडेचर एंड आई हैव टू कम हियर नाउ, ये मेरा कैंडिडेचर है एंड जस्ट आई हैव टू डन इट नाउ, और मुझे करना है।
तो यू कैन यूज़ द सच टाइप ऑफ वर्ड मीनिंग एंड धनकर ओवर इज द विक्टिव प्रेसिडेंट द्रौपदी, और जो हमारी अभी प्रेसिडेंट चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, उनको बधाई दिया है एंड उन्होंने कहा इससे हमारे देश को एक लंबा बेनिफिट होगा एंड रिच एक्सपीरियंस, और ही उनका जो धनी व्यक्तित्व, उनका जो धनी अनुभव रहा है, बेहतरीन अनुभव रहा है, वो हमारे देश के और हमारे पब्लिक लाइफ में क्या होगा, काम आएगा। ये किसका कथन है, मुर्मू जी का कथन। बस आप इतना जानते रहिए। रिच एक्सपीरियंस हो सकता है, माई बेस्ट विशेज, वो उनको वेस्ट विशेज दे रही हैं कि मेरी ये आपको शुभकामनाएं हैं, मेरी पूरे देश को शुभकामनाएं हैं कि उनके मार्गदर्शन में हमारा देश उत्पादक के एक अच्छे प्रोडक्टिविटी और सक्सेसफुल वे पे जाएगा। प्रोडक्टिविटी मीन्स मतलब सच यू कैन से दैट आवर कंट्री इज ऑल्सो द ग्रोइंग डे बाय डे, सच टाइप ऑफ मैटर इज ऑल्सो नोन दैट सच टाइप ऑफ वर्ड इज ऑल्सो ट्राई टू डिलीवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रोइंग डे बाय डे, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्टिविटी। एंड आफ्टर दैट हियर इज ऑल्सो द सेकंड पॉइंट एंड द सेकंड पैरा, एक पैरा बिल्कुल कवर करते हैं। एंड सक्सेसफुल टेनर मीन्स टेनर मीन्स क्या होता है कि ये कह रहे हैं कि हमारी बेस्ट विशेष है कि उनके शासन काल में, ये टेनर मीन्स होता क्या है, शासन काल होता है। आई विल नॉट राइट इन द हिंदी, बस जस्ट आई कैन से दैट टेनर मीन्स शासन काल। एंड इनके शासन काल में और उनके अच्छे व्यक्तित्व से, उनके एक्सपीरियंस से हमारे देश को अच्छा अनुभव होगा, लाभ होगा। सी सेट द आउट गोइंग द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, उन्होंने आउटगोइंग वेंकैया नायडू के तहत भी कुछ कथन आया। नेशन वुड द ग्रेटली बेनिफिट, भारत को बहुत ही, हमारे देश को लाभ होगा। आई फ्रॉम द धनकर वास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे धनकर जी के पास बहुत ही लंबा अनुभव है, बहुत ही विशाल अनुभव है। एंड लीगल एक्सपर्टीज़, और बहुत ही बेहतरीन दक्षता है, बहुत ही बेहतरीन योग्यता है, बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। लीगल मीन्स कानूनी वैधानिक तो होता है, लेकिन आप यहाँ पे नहीं उस तरीके से मैच नहीं करता, सेट नहीं कर सकता। और यही होता है कॉम्प्रहेंसन, आप पढ़ते हैं और उसके मूड में क्या सेट करते हैं, दैट इज़ द पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज द कॉम्प्रहेंसन। तो आफ्टर दैट वी विल आल्सो ट्राई टू द माई बेस्ट विशेज फॉर द सक्सेसफुल एंड द फ्रूटफुल टेनर ही सेड, वो कह रहे हैं कि मेरी बेस्ट विशेज है कि हमारा देश उनके नेतृत्व में एक फ्रूटफुल मतलब एक जो है मतलब एक बेहतरीन सक्सेसफुल फ्रूटफुल होगा, मतलब एक जाया के रूप में नहीं है, मतलब एक बेकार नहीं जाएगा, फ्रूटफुल के रूप में रहेगा। और फ्रूटफुल की जस्ट यू कैन से द वर्ड मीनिंग ऑफ द हिंदी, फ्रूटफुल मतलब वो जो उनके नेतृत्व में हमारा देश डे बाय डे तरक्की करता रहेगा। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ धनखड़ एंड द कांग्रेचुलेट, लोगों ने उनको कांग्रेचुलेट किया। आई एम कॉन्फिडेंट विल बी द आउटस्टैंडिंग वाइस प्रेसिडेंट और नेशन, वो कह रहे हैं मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट मिले हैं। आवर नेशन विल गेन ट्रेमेंडसली, हमारा अब यहाँ पे एक वर्ड आता है ट्रेमेंडसली, ट्रेमेंडसली मतलब होता है विशाल, ट्रेमेंडसली मतलब विशाल, बहुत ही वास्ट। एंड फ्रॉम हिज द इंटेलेक्ट एंड द विजडम मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने मिस्टर मोदी सेड हैज़ रिवील्ड अबाउट दिस मैटर दैट आवर कंट्री विल बी बेनिफिटेड बाय द ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस ऑफ द of the Dhankar, and what will the benefit to our country. At this such type of matter I will also try to explain in the next video, and after we will also try to cover the little bit knowledge, little small paragraph by which we can improve our knowledge, comprehension knowledge, understanding knowledge, word meaning knowledge. And because the word meaning word meaning is also the important to in the spoken, and as well as there will be the comprehension, understanding we will also try to improve by this newspaper. And after this I will also try to see you in the next video. Thank you guys.